Good morning. सबको सलाम। Where we will go over some of the concepts about kingdom of heaven today. आसमान की बादशाहत के बारे में हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे। Okay. Sequentially, we'll just see what's happening here. तो तरतीब हम देखेंगे क्या वाक़यात हैं। The first one is 2010. The fifth trumpet already happened. तो 2010 पांचवा नरसिंगा फूंका जा चुका है And then there will be a sixth trumpet, which is World War III coming. और तीसरा नरसिंगा बाकी है जो तीसरी जंगे अजीम है। We already talked about, the Syria situation right now is quite dangerous. और हमने देखा कि सूरिया की या शाम के मुल्क की हालात बड़े संजीदा है। Okay, and then after World War III, there will be a 7-year treaty. और तीसरी जंग अजीम के बाद 7 साला एक मुआहदा होगा। So this is the 7-year period from here to there. हाँ जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 साला अरसा दौर है। And it is divided into 2 halves. और वो 7 साल जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। Okay, the first half, पहला हिस्सा 2 witnesses coming. उसमें 2 गवाह आएंगे। Okay, and then during that time, about 8 months of the 7-year covenant, there will be third temple और जब built. 7 साला अहद बांधा जाएगा तकरीबन 8 माह के बाद हैकल तामीर हो जाएगी। During this time, probably it's a kind of peaceful time. और ये वक्त जो है तकरीबन अमन व अमान का वक्त होगा। You think about that because it was after World War III. क्योंकि ये तीसरी जंग अजीम के बाद का वाक़या है। So after World War III, how can people start, wars again here? तो एक जंग खत्म हुई उसके बाद जंग शुरू करना मुमकिन नहीं है। So many people believe the 7-year period, whole 7-year period will be persecution era, but it's not. कई लोग समझते हैं ये 7 साल जो हैं ये सारे एक बड़ी मुसीबत के हैं। Okay, and so relatively two witnesses, although there are some oppositions to these 2 witnesses, but this will be a peaceful और अगर time. चाहिए 2 गवाह जो हैं उनकी कुछ मुखालफत तो होगी लेकिन अमूमी तौर से अमन का दौर है। Okay, and then in the middle, the Antichrist comes. और ये इसके निस्फ में मुखालफ मसीह आता है। You all agree with this. आप इससे मुत्फिक हैं। And then there will be, Antichrist comes and then they say, kill the Christians. मुखालफ मसीह आएगा और वो कहेगा मसीहों के सर कलम करो। Also, Jewish people will not listen to the Antichrist. और यहूदी लोग भी मुखालफ मसीह की नहीं सुनेंगे। But anyway, when Antichrist issues this decree, it is time, we will wait for the rapture. तो जब वो ये हुक्म सुनाता है तो आप जान लें कि अब वक्त है कि कलीसिया उठाई जाएगी। I would like, for example, if there is a decree to kill Christians, then I would prepare about 1 or 2 months of the food in my house. तो जैसे ही ये हुक्म सुनाया जाए कि the decree about To kill the Christians or कि something. मसीहों को कत्ल करने का हुक्म दिया जाए तो अगर मैं वहाँ हूँगा उस वक्त तो मैं तो फटाफट चंद महीनों का राशन जो है उसका इंतजाम कर लूँगा। Nothing to fear about it. उससे डरने की जरूरत नहीं है। Because we will be उठाए जाएंगे. हाँ, हम उठाए जाएंगे उस वक्त। Okay, so nothing to fear about, and there will be rapture. फिर कलीसिया उठाई जाएगी। And then okay, now and then there will be 7 bowls pouring on the earth. और ये वो वक्त है जब वो 7 जो प्याले हैं उंडेले जाएंगे। And there will be a battle of Armageddon. और उसी वक्त हर मजदून की जंग होगी। Because Israel people will not listen to the Antichrist. क्योंकि इसराइली मुखालिफ मसीह की नहीं सुनेंगे। Nations will attack Israel. और कौमें इसराइल पर हमलावर होंगी। Probably this is a Gog Magog war, Ezekiel chapter 38-39. और शायद ये हिजकिय्याह 37-38 के जो जूज मजूज की जंग है जिसका जिक्र वहाँ है वो होगी। But in this war, Israel is in trouble. लेकिन उस जंग में बड़ी इसराइल जो है बड़ी मुसीबत में होंगे। If you go to Zechariah, there, Israel will be defeated, by these nations. और ज़करिया के आखिर में देखें तो इसराइल वहाँ शिकस्त पाएगा। And then Jesus comes. फिर उस मौका पर खुदावंद यीशु की आमद होगी। Yeah, and then he will win over all those nations. और खुदावंद इन सब कौमों पर गालिब आएंगे। And then and then the war is over, and then there will be about 30 days more from the end of the 7-year period. जब 7 साल का अरसा पूरा हो जाएगा तो 30 दिन और होंगे। So this 30-year period, probably the temple will be cleansed. जिसमें जो
हैकल है उसकी तकदीस की जाएगी। And then if you go to Daniel, Daniel says that, those persons who are waiting until 1335 days will be blessed. और वहाँ दानियल में यहाँ लिखा है कि वो लोग जो 1335 दिन तक इंतजार करेंगे वो मुबारक होंगे। So if you go to Matthew 25, और मत्ती 25 देखें। let's say Matthew 25. So here, for example, you know this story, and then, for example, from verse 31 and 32. 31 और 32 आयत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। Okay, when is it? Is it when Jesus is coming to the cloud, or when he is coming to the earth? तो जब खुदावंद बादलों तक आएगा, क्या ये वाक़या उस वक्त होगा या जब खुदावंद यीशु ज़मीन पर आएगा उस वक्त होगा? जब वो जमीन पर आएगा, जलाल के तख्त पर बैठेगा, इसका मतलब कि बादशाही का फिजिकली बिफोर मिलेनियम किंगडम। Yeah, before millennial kingdom, he comes to the earth, right? 1000 साल बादशाह से पहले खुदावंद यीशु ज़मीन पर आएगा। So he is, summoning all the nations there. और उस वक्त ये जो सब कौमें हैं उसके सामने हाजिर होंगी। These nations, are they Christians? ये कौमें क्या मसीह कौमें हैं? No, they are not Christians. ये मसीह कौमें नहीं है। Okay, how do you know? हम कैसे जानते हैं? Okay, for example, at verse 40, 40 yeah. चौथी आयत 40वीं आयत। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। And Jesus saying, you people, these righteous people, they are saying this, that they are sheep, right? And you people to, this is my brothers, you did something good. तो खुदावंद उनको रासबाज ठहराता है क्योंकि उन्होंने उसके भाइयों के साथ कुछ अच्छा किया था। If these are Christians, Jesus wouldn't say it that way. अगर ये मसीह होते तो खुदावंद उनको ये बात ना कहता। Well, why Jesus say separately, these two my brothers here? और यहाँ खुदावंद क्यों अपने भाइयों का जिक्र करता है? Who are these brothers here? ये भाई कौन है? Christians, right? मसीही लोग। Why are they helped by these people? और इन्होंने क्यों मदद की मसीहों की? Because they were not raptured and they were running away. क्योंकि ये उठाए नहीं गए थे और ये मुखालिफ मसीह से भागे फिर रहे थे। Yeah, in these difficult times of, these 3.5 years, they were running away. क्योंकि इन 3.5 साल में वो भाग कर जान So बचाते थे। some nations will help them, some nations will not help them. कुछ कौमें हैं जो उन खुदा के लोगों की मदद करेंगी, कुछ कौमें हैं जो मदद नहीं So करेंगी। those nations who help them will enter into this millennial kingdom. और जो कौमें उनकी मदद करेंगी वो 1000 साल बादशाहत में दाखिल होंगी। Understand that? Jesus promised that we will be ruling with the iron rod the nations. और खुदावंद यीशु ने कहा कि हम वो लोहे के एहसास से कौमों पर हुकूमत करेगा। The question is, who is the people to be ruled? तो सवाल ये है कि वो किन पर हुकूमत करेगा? There should be some people who will be ruled by us. तो कुछ लोग होंगे जिन पर हम और खुदावंद यीशु हुकूमत करेंगे। Yeah, these people are those people, these sheep here, these people are those people to be ruled by us. और ये वो कौमें हैं जो भेड़ें हैं, भेड़ों की वो उस कैटेगरी में हैं और उन पर हम बादशाही करेंगे। Yeah, and then they are not resurrected. ये वो लोग नहीं हैं कि कहीं जिंदा हो गए हों। They have their, this body like this. उनके वही जिस्मानी बदन है। So we will not go over, but if you go to Isaiah chapter 11 and 65, all those verses there. जब 11 और 65 को पढ़ें, They say their age will be like very much. For example, if you die in the millennial kingdom at the age of 100, you will be like being cursed. तो उस वक्त लंबी उम्रें होंगी और उस ज़माने में अगर कोई 100 साल का होके मरेगा तो यही समझा जाएगा कि इस पर लानत पड़ी है। Yeah, if they had a resurrected body, they wouldn't die.
और अगर तो जिंदा जो रूहानी बदन है और जो जिंदा किया गया बदन है वो तो नहीं मरेगा। Yeah, but the age here will be elongated. लेकिन 1000 साल बादशाह में उम्रें बहुत बढ़ जाएंगी। Yeah, but they have still this body. उनके पास वही पुराना बदन है अभी But तक। we have resurrected body, हमारे पास जो बदन होगा वो तो मुर्दों में से जी उठा बदन होगा, which we don't have, sin nature, जिसमें गुनाह की फितरत नहीं होगी, but they still have sin nature. लेकिन दूसरे जो होंगे उनके पास वही जिस्मानी बदन है। So during the गुनाह during the वाला। millennial kingdom, there are two kinds of people living there. तो 1000 साल बादशाह में दो किस्म के लोग होंगे। Okay. Now, the question is, when you go rapture here, सवाल ये है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी okay, when does rapture in Revelation? It's chapter 14. तो मुकाशवा में जब हम देखते हैं तो वो मुकाशवा 14 बाब है। If you go to chapter 14, 14 बाब में देखें, verse 14. 14 फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानित कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। Okay, who is this person? ये शख्स कौन है जी? Yes, Moshe. Where is he? वो कहाँ पर है जी? बादल पर है। Yeah, Badr. Why? Because in 1 Thessalonians chapter 4, we know that we'll be going up to the cloud to और वो meet क्यों Jesus. बादल पर है? क्योंकि पहले थिस्सलुनीके 4 में हम जानते हैं कि वो बादलों तक आएगा। Yeah, this is the only place in Revelation that Jesus comes to the cloud. और ये एक ही जगह है जहाँ मुकाशवा में जिक्र है कि खुदावंद बादलों तक आएगा। So this must be the rapture. तो ये मौका है कलीसिया के उठाए जाने का। Where did the Antichrist come in Revelation? मुकाशवा में मुखालिफ मसीह कब आता है? Chapter 13. 13वें बाब में। So, after Antichrist comes, before the persecution, then there will be a rapture. तो जब मुखालिफ मसीह बर्पा होता है और अभी इज़हार रसानी शुरू नहीं हुई, उससे पहले कलीसिया उठाई जाएगी। Think about this. Antichrist says you have to have this mark of beast 666, all of you. और आप ये बात याद रखें, ये सोचें कि मुखालिफ मसीह कहता है ये निशान जो 666 का है वो होना ज़रूरी है। It takes time to get these marks. लेकिन दुनिया को ये सब निशान लगाना वक्त लगेगा। For example, in India, probably they took about 2 years to scan all your eyes and fingerprints there. तो इंडिया को तकरीबन 2 साल लगेंगे अगर वो हमारी आंखों का स्कैन करता है, फिंगरप्रिंट लेता है। Yeah, so they will make a decree saying that up to within a few months or within a year or something like that, they have some kind of fixed amount of period that you should get this mark of beast. एन मुमकिन है कि वो हुक्मनामे जारी करें कि इस मखसूस वक्त के अंदर अंदर ये सब काम होना ज़रूरी होगा। So I believe that before that period, the rapture will happen. और मेरा ये मान है कि उससे पहले ये कलीसिया का उठाया जाना वाक़या होगा। So nothing to worry about. इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Okay, anyway, the rapture happens after Antichrist comes. तो मुखालिफ मसीह के बर्पा होने के बाद कलीसिया उठाई जाएगी। And then, we go to the cloud. हम बादलों तक जाएंगे And then Jesus will lead us to the heaven. और खुदावंद यीशु आसमान तक हमारी रहनुमाई करेगा। Okay, so how do you know? हम कैसे जानते हैं? In verse Revelation chapter 15, verse 2. मुकाशवा 15:2 बाब में फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी और जो उससे हैवान और उसके बुत और उसके नाम की अदद पर गालिब आए थे उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। Okay, here they are in the Samudra, crystal sea. और यहाँ ये है शीशे का एक समुंदर है। Okay, this Samudra, crystal sea is also in chapter 4. और एक और समुंदर का जिक्र है 4 बाब में। If you go to chapter 4, verse 6. मुकाशवा 4:6। मुकाशवा 4:6। और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलूर की मानित है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें हैं, आंखें ही आंखें। Yeah, this is also this crystal sea there. So we know that it's in front of God's throne.
तो ये शीशे का समुंदर हम जानते हैं कि ये खुदा के तख्त के सामने है। Okay, but there is a difference between the crystal sea in chapter 4 and here chapter 15. What's the difference? लेकिन बाब 4 और बाब 15 के जो शीशे के समुंदर है उसमें एक फर्क है। एक फर्क क्या है? क्या फर्क है? 15 बाप वाले समुंदर में आग मिली हुई, Yeah, 4 बाप उसमें yeah. You know, here there is a fire here. यहाँ पर लिखा है कि ये आग मिली हुई थी। Why fire is there? यहाँ आग क्यों है? When you meet Jesus, what happens there? जब खुदा उनको मिलेंगे तो क्या होगा जी? मिलने के बाद क्या होगा? Yeah, if you go to 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians 5, verse 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians 5, verse 10. 10 आयत। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। So, if you meet Jesus, there will be judgment seat of the Christ. तो जब हम मसीह को मिलेंगे तो हम मसीह के तख्ते अदालत के सामने पेश होंगे। Okay, in verse 10, does it say that he will judge according to our faith here? और यहाँ लिखा है कि वो हमारे कामों के मुताबिक हमें बदला देगा। In verse 10, in 2 Corinthians chapter 5? 2 it doesn't Corinthians say 5, that. 10 में It doesn't say that he will judge according to our faith here. यहाँ ये नहीं लिखा गया कि वो हमारे ईमान के मुताबिक हमें बदला देगा। Why? क्यों? Because we are all Christians. क्योंकि हम तो मसीह हैं, पहले ईमान ला चुके हैं। We all have the faith. हम सब ईमान रखते हैं। But what does it say here? और यहाँ क्या कहा गया? About your works. हमारे कामों, He will judge about our works. हमारे कामों की अदालत होगी। Okay, so about this, Paul said in 1 Corinthians chapter 3, और 1 कुरिन्थियों 3 में पौलुस क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों you 3 know these verses, okay? And ये then, आयतें तो आपको आती हैं, पता है। okay, now, for example, from verse 12 and 12 through 15, 12, 13. 12 और 13 पढ़े कोई। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का सा रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसका उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। Okay, does it say the fire will test your faith? क्या यहाँ लिखा है कि वो आग हमारे ईमान को आजमाएगी? No, no, no. It will test your works. वो हमारे कामों को आजमाएगी। Okay, because all are Christians. हम सब मसीही होंगे। Okay, and then the fire will try to test your house there. तो वो जो घर बनाया है उसको चेक किया जाएगा आग से। Okay, everybody is like building a house in their lifetime. और हर कोई अपनी जिंदगी में ऐसे है जैसे घर बना रहा है। Whether you obey Jesus or whether you love the world, you're kind of building a house. अगर आप खुदावंद की ताबेदारी कर रहे हैं या दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, ये काम जो है ये घर बनाने के मुतरादिफ हैं। For example, I just had an argument with my wife yesterday. मिसाल के तौर पर कल मेरी बीवी से मेरी तकरार होगी। Okay, I'm building a house with the lakri brick there. तो वहाँ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि लकड़ी का रद्दा रख रहा हूँ। So I repented today. Oh God, माफ कीजिए. और लेकिन अगले दिन मैं खुदावंद से माफ़ी मांगता हूँ। And then I said to my wife, I'm sorry. फिर मैं बीवी को भी कहता हूँ सॉरी। Then this brick will be removed. तो वो जो लकड़ी की है ईंट वो निकाली जाएगी। But today I just shared the gospel. लेकिन आज मैंने खुशखबरी सुनाई है। Ek sona brick, I made a तो house. वहाँ पर सोने की ईंट आ जाएगी। Likewise, you are building house धीरे, इस holy. तरह ऐसा हम वो एक घर तामीर कर रहे हैं। So, fire comes and they will test it. और जब आग होगी तो ये आजमाएगी। Well, actually about this, Jesus said, और खुदावंद यीशु ने जब ये कहा, Jesus says, if you deny, you need to deny yourself, खुदावंद यीशु ने कहा कि हमें अपनी खुदी से इनकार करना है, take your own cross, अपनी सलीब उठानी है and follow me. और उसकी पैरवी करनी है। Only when you do that, you are building a house with gold or silver. तो फिर जब हम ऐसा करते हैं तो फिर उसी वक्त ही
हम वो घर जो है सोने से तामीर करते हैं। Okay, and then so some of the houses will be okay. So it says in verse 14, और 14वीं आयत में है कि कुछ घर तो हैं वो ठीक होंगे, बच जाएंगे। 14वीं आयत, जिसका काम बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, yeah, so he will get rewarded. उसको अजर मिलेगा। Okay, so you know this story, you know, and then you are a good servant, Jesus says. आप ये कहानी जानते हैं You are a good servant. और आप एक अच्छे नौकर हैं खुदावंद के, Yeah, good and faithful servant. अच्छे और वफादार नौकर। But many people, many Christians miss this information about, you know, verse 15 here. लेकिन 15वीं आयत की जो मालूमात है बहुत से मसीहों ने कभी इस पर गौर नहीं किया। लिखा है, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। Okay, here, you know, instead of getting rewarded, he will get harmed. यहाँ लिखा है कि बजाय इसके कि उसको अजर मिले वो नुकसान उठाएगा। Okay, what is this harm here? ये नुकसान क्या है जी? Do you see any harm, you know, according to the Christians in the Bible? बाइबल में मसीहों को नुकसान उठाते हुए कहीं आपने देखा है? Okay, tell me. बताएं। Because usually when you see some verses there, you should back up with different verses in the Bible. तो जब भी हम कोई आयत पढ़ते हैं तो उसको सपोर्ट में हम बाइबल में और आयतें ढूंढते हैं। Yeah, so what is this harm here? तो ये नुकसान क्या उठाएंगे खुदा के लोग? Okay, we'll talk about those things today, maybe. तो हम इन बातों के बारे में बात करेंगे। Anyway, but eventually, but although he gets some harms, eventually he will get saved, he says. लेकिन यहाँ ये लिखा है कि अगरचे वो नुकसान उठाएगा लेकिन बच जाएगा वो। Okay, what does it mean? That's a kind of contradiction, right? ये एक तरह का तजाद है कि वो नुकसान भी उठा रहा है और बच भी जाएगा। Yeah, for example, if you go to 1 Corinthians chapter 5, पहला कुरिन्थी 5 जब हम देखते हैं, okay, you know this story from verse 1 here. 5 बाब 1 आयत से ये कहानी जानते हैं आप। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि तुम्हें हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। So चुनांचे तुम्हें एक शख्स अपने बाप की बीवी रखता है। this person, surely he is a Christian, but he committed a sin which Gentiles even don't commit. तो यकीनन ये शख्स मसीही था, लेकिन ये गुनाह वो कर रहा है जो गैर कौमें भी नहीं करती। So, and verse 5, और 5वीं आयत में, जिसकी हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन निजात पाए। yeah, we don't exactly know what it means when he is delivered to the Satan here. हमें ये नहीं पता कि जब यहाँ वो शैतान के हवाले किया जाता है तो इससे क्या मुराद है। Maybe he got disease and he died, maybe. शायद उसे कोई बीमारी लगी और वो मर गया, But it says he will be saved. लेकिन लिखा ये है कि वो निजात पाएगा। So, what it says is that although he was committing the worst sin you can imagine, और जो संगीन तरीन गुनाह जिसका हम तस्वर करें वो अगरचे कर रहा था, he will be saved. फिर भी वो बच गया। Why? क्यों? Kyun? Because we already went over Romans 11:6. क्योंकि रोमियो 11:6 में हमने क्या देखा? Yeah, fazl doesn't depend upon your works. जो फजल है वो उसका इनसार हमारे कामों पर नहीं है। Yeah, if it depends upon the works, it's not fazl at all. अगर फजल का इनसार कामों पर होता फिर वो फजल ना रहा। Okay, so although he committed the worst sin ever, but he will be saved because of the cross. लेकिन उसने अगरचे संगीन तरीन गुनाह किए हैं, लेकिन सलीब के नतीजे में वो बच जाएगा। But okay, now, so we know that after this judgment of the nations, यहाँ हम जानते हैं कि कौमों की अदालत के बाद there will be 1,000 years of Jesus reigning in Jerusalem. और खुदावंद यीशु 1000 साल तक यरूशलेम से बादशाही करेंगे। You all agree that there will be millennial kingdom on the earth? 1000 साल बादशाह पर हमारा ईमान है। Yes, because we literally believe the Bible, what Bible says. हम लफ्जी तौर से ये यकीन करते हैं कि जैसे लिखा है ऐसे ही होगा कि 1000 साल बादशाह। Well, actually, many Christians don't believe it.
हकीकत में कई मसीही हैं जो ये ईमान नहीं रखते, Yeah, but Revelation chapter 20 specifically says that, there will be 1,000 years of millennial kingdom. लेकिन मुकाशफा 20 बिलखुसूस ये जिक्र करता है कि 1000 साल की बादशाहत होगी। Okay, and then after millennial kingdom, there will be a white throne judgment. और 1000 साल बादशाहत के बाद बड़े सफ़ेद तख्त के सामने एक और अदालत होगी। Okay, now, when you go to the God's throne here after you are raptured, तो उठाए जाने के बाद जब हम खुदावंद के तख्त के सामने हैं, how long do you stay in the heaven? आसमान में कितनी देर रहेंगे? How long do you stay? कितनी देर रहेंगे जी? हाँ जी, नहीं 7 साल के आद में तो हम उठाए गए थे ना। हाँ, साढ़े तीन सर। हाँ जी, 3.5। Okay, कैसे जानते? कैसे मालूम है 3.5 साल रहेंगे? ईमानदार उठाए जाएंगे 3.5 साल के बाद। Because of that last 7 years, after 3.5 years, the believers will be raptured. Then where do you go after 3.5 years? तो उस 3.5 साल में हम कहाँ जाएंगे? आसमान में। In heaven. In heaven? You are staying in heaven here. In heaven here. After rapture, you stay in heaven. How long do you stay in heaven? तो कितना अरसा हम आसमान में रहेंगे? 3.5 साल। And then where do you go? फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? Huh? हमेशा इन आसमान पर? We'll come back with Christ. Yeah, we'll come back with the Christ. हाँ, हम मसीह के साथ वापस आएंगे। Yeah, वापस आएंगे. Yeah. So we will be staying here on the earth with Jesus. हम खुदावंद के साथ 1000 साल बादशाहत में होंगे। Because you see, Jesus promised that we will rule with iron rod with Jesus together और on आप this याद earth. रखें कि खुदावंद ने ये वादा किया था कि हम उसके साथ वो लोहे के असास से हुकूमत करेंगे। Okay, so now after 1,000 years, there will be new heaven and new earth appearing, right? और फिर ये जो बड़े सफ़ेद तख्त के अदालत के बाद फिर नया आसमान नई ज़मीन And होगी। this earth and this heaven will be burnt up. और ये आसमान ये ज़मीन जो है ये जल जाएंगे। In Revelation chapter 21, New Jerusalem comes down from the मुकाशफा heaven. 21 बाब में नया यरूशलेम आसमान से उतरता है। Is this New Jerusalem upper in the air, or is it in the Jasman part in the new earth? तो जो ये नया यरूशलेम है क्या ऊपर हवा में होगा ये ज़मीन पर आकर टिकेगा? कैसे जानते? Okay, if you read the chapter 21 of Revelation, there will be kings coming through the door of this New Jerusalem. क्योंकि 21वें बाब में हम देखते हैं कि ज़मीन के जो बादशाह हैं वो उसके दरवाजे तक आते हैं और अपनी शान शौकत का सामान लाते हैं। It should be, on the Jasman part. So my question is, many Christians believe that when you die, you go to the heaven and stay there forever. बहुत से मसीह ये सोचते हैं जब हम आसमान पर जाएंगे फिर हमेशा तक आसमान पर होंगे। No, it's not true. ये सच नहीं है। You will be there, if you're raptured, you will be there for only 3.5 years maybe. जब आसमान पर जाएंगे 3.5 साल तक रहेंगे। And then you will be staying with Jesus on this earth here. फिर खुदावंद यीशु के साथ ज़मीन पर होंगे। And then after 1,000 years, you will still be there on the Jasman part, on the new earth there. और फिर 1000 साल के बाद फिर भी हम ज़मीन पर होंगे लेकिन ये नई ज़मीन नया आसमान है। Okay, now the question is, सवाल ये है what is the difference between the judgment seat of Christ and the judgment in the after the millennial kingdom here, white throne judgment? तो जो मसीह का तख्त अदालत है और फिर बड़ा सफ़ेद तख्त जो है इन दोनों में क्या फ़र्क है? What is the difference, the years between the two? और कितने सालों का फ़र्क है इनमें? What is the years between the two? Yeah. यहाँ थोड़ा सा क्लियर करवा दें हाँ जी, कि जो 3.5 साल है, हाँ जी, 3.5 साल के बाद 1000 साल बादशाहत होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन 1000 साल बादशाहत जो जमीन पर होगी, हाँ जी, क्या 1000 साल बादशाहत से पहले नई जमीन नया आसमान बन जाएगा? नहीं बाद में तो फिर जो कलीसिया है हाँ जी, वो तो नया आसमान और नई जमीन पे उतरेगी। हाँ जी, वो 1000 साल बादशाहत के बाद
जब नया आसमान यही तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि वो 3.5 साल के बाद वो आ जाएगी, लेकिन 1000 साल बादशाह के बाद जी जी बिल्कुल। नया आसमान और नया जमीन बनेगी। ये जरा clear आज ये मुकाशवा की जो बाबों की तरतीब है ना जरा वाक़या, वो उसके साथ अटैच हो गए कि 3.5 साल के फौरन बाद कलीसिया जमीन पर 1000 साल बादशाह के लिए आ जाएगी। हाँ ये तो यही होगा, तो वो नया आसमान और नई जमीन होगी। वो 1000 साल बादशाह यही के मैं बाद। पूछ रहा हूँ कि हाँ जी। नया आसमान नई जमीन तो 1000 साल बादशाह में नहीं होगी। नहीं होगी। फिर कलीसिया पहले कैसे आ गई? वो मसीह के साथ नहीं, वो मसीह के साथ बादशाही करेगी। They are little bit confused about new heaven and new earth. Will it be part of the 1000 year? No. नहीं। Okay, if you go to Revelation chapter 20. देखें मुकाशवा Okay, verse 7. और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया। Yeah, Satan was first, when the millennial kingdom starts, Satan will be put to the abyss. जब 1000 साल बादशाह शुरू होगी तो शैतान बांधा जाएगा। So during these 1000 years, there will be no Satan. तो इस 1000 साल में अबलीस का कोई असर नहीं So होगा। if you read Isaiah 11, like that, there will be some, the nature of the animals will change. और यसाया 11 के मुताबिक यहाँ तक कि जानवरों की फितरत भी तब्दील हो जाएगी। And children will play with the snakes, और बच्चे जो हैं वो अफाई के साथ सांप के बिल में आ जाएंगे। There will be no harm during the millennial kingdom. और वो कोई भी जरर नहीं पहुंचाएंगे। But after 1000 years, Satan is loosed from the abyss a little bit. और फिर 1000 साल के बाद थोड़ी देर के लिए शैतान छोड़ा जाएगा To discern who are against Christ. और ये वो देखेगा कि कौन मसीह के खिलाफ है। So there will be a Gog-Magog war here. तो यहाँ पर जूझ मजूद की जंग होगी। Yeah, this Gog-Magog war is different from the Gog-Magog war here. और जो ऊपर जंग हुई है जूझ मजूद की, ये उससे ये वाली फर्क होगी। Okay, anyway, and then there will be white throne judgment. और फिर बड़े सफेद तख्त जो है उसकी अदालत होगी। And then this heaven and this earth will be burnt up. फिर जो है नया आसमान, पुराना जमीन और आसमान जो है वो जलाए जाएंगे। And then chapter 21 verse 1. फिर 21 बाब की पहली आयत, And then it says, new heaven and new earth comes. फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को So देखा। there will be no intersection between millennial kingdom and new heaven and new earth. और No intersection. no intersection, No common parts. सॉरी, Common period. अच्छा। तो जो 1000 साल बादशाह है और नया आसमान और नई ज़मीन है, ये आपस में कोई मिक्स नहीं है, बल्कि 1000 साल बादशाह के बाद नया आसमान और नई तो मैं कह रहा था पुरानी जी। जमीन पे उतरेंगे। हाँ जी, कलीसिया पुरानी जमीन पे 3.5 साल कलीसिया पुरानी नई जमीन पे जमीन पर उतरेंगे। उतरेगी। हाँ जी, 1000 साल बादशाह पुरानी ज़मीन पे ही है। हाँ जी, यही तो हाँ, बिल्कुल, क्लियर नहीं था। बिल्कुल Oh, really? ऐसे ही है। What? They thought that when the church will come back, they will coming back to new heaven, new earth. Oh, no. नहीं। Yeah. Well, if you go to, for example, Revelation chapter 19, मुकाशवा 19 बाब देखें, okay, let's say verse 14. 14वीं आयत। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे। Yeah, this heavenly army might be angels, but it also includes saints, I think. ये आसमानी फौजें जो हैं इनमें फरिश्ते भी शामिल हैं, लेकिन ईमानदार भी। Because in verse 8, 8वीं आयत में, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम बढ़ा। yeah, what is this kapra here? ये महीन कतानी कपड़े क्या हैं जी? It's called fine linen. ये महीन कतानी कपड़ा है। Okay, राष्ट्रवादी का लिबास। This is the work of the saints. ये work of the saints. It's a work of the saints. ये Okay? उनके काम है। So if you go to Galatians chapter 3, गलतियों 3 जब देखें, verse 27, 27 गलतियों, वर्स 27। yeah. और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। Okay, here is a kapra also. Here is a clothes also, 3:27, Galatians. गलतियों 3:27 में
ये इनके जो कपड़े हैं वो क्या हैं? Yeah, Moshe, yes, Moshe. Okay, so everybody who believes in Jesus wears these clothes of Christ. जो मसीह पर ईमान रखता है हर कोई उसने ये कपड़े पहने हैं जो मसीह को पेश करते हैं. Is this kapre the same as the kapre that we were reading this fine linen in Revelation chapter 19? तो मुकाशवा 19 में क्या वो कपड़े वही हैं जो उस दुल्हन ने पहने हैं? Huh? Yes or no? हाँ या ना? यहाँ तो वो राष्ट्रवासी के काम मुराद है. So over there it's the work, over here is Christ. Yeah, over here in Revelation chapter 9, it's saints' righteous actions. जो मुकाशवा 9 बाब में सफ़ेद लिबास महीन कतानी कपड़े हैं ये हमारे काम हैं. So some people don't wear these righteous actions, this kapre, fine linen, and some people don't wear it. Some Christians. Although they have Christ. Yeah, तो Christians. तो गलतियों में हमने पढ़ा कि मसीह को पहन लिया. तो कुछ मसीह हैं जिन्होंने मसीह को तो पहना हुआ है लेकिन रासबाजी के कामों को की पोशाक नहीं पहनी हुई. Understand that? Yes. Yeah. For example, if you go to Revelation chapter 7, देखें मुकाशवा 7, there are a group of people appearing in the heaven. कुछ लोग हैं जो आसमान पर जाहिर हो रहे हैं. Verse 9. 9 आयत 7 बाब 9 आयत. जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक कौम, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं. Who are these people? They are Christians. बेटा बात सुनो, मुझे ज़रा वो एक सीधी वाली चेयर ला देना. हाँ चेयर जो है. हाँ जी. These people are Christians. हाँ नहीं वो ज़रा ऊँची जी. These people are Christians. क्या ये लोग मसीही हैं? If you see the original Greek word here, और यहाँ जो असल यूनानी ज़बान को देखते हैं, specifically it is kapre is stole. और ये जो कपड़े हैं इनको स्टोले कहा गया है. Okay, stole means it's a long clothes up to here. तो स्टोले से मुराद है कि लंबे जामे हैं जो पाँव तक है. Okay, so this stole, if you see Old Testament, only priests wear here. और ये जो जामे होते थे ये सिर्फ काहिन पहनते थे. So it means all those people are priests. इसका मतलब ये सब काहिन है. As you know, in 1 Peter chapter 2 verse 5 9, we are all priests, right, in Christ. और पहला पत्रस 2 बाब में हम सब जो हैं काहिन हैं. Although we are not of the Levites, अगरचे हम लीवी के घराने से नहीं हैं, how can we become a priest? तो फिर हम काहिन कैसे बन सकते हैं? We are not of the Levites. हम तो लावी के घराने के हैं ही नहीं. Yeah, but because we are priests in the order of Melchizedek. लेकिन मलके सिद्दीक की एक और घराना है जिसके हम काहिन बन सकते हैं मसीह की वसीले से. Okay, because Jesus is the high priest in the order of Melchizedek. और जो खुदावंद यीशु है वो मलके सिद्दीक सालम का बादशाह है और वो यानी सरदार काहिन है. So they are wearing these priest clothes here. और इसलिए ये सब वो लिबास काहिनों के पहने. That is what Galatians chapter 3:27 says. ये गलतियों 3:27 कहते We are हैं. all clothed with Christ. वो उन्होंने मसीह को पहना हुआ. Okay, but when you go up there, लेकिन जब हम आसमान पर जाएंगे you are rewarded हमें जब अजर दिए जाएंगे on new clothes there, और second clothes. और जामा पहनने की हमें इजाजत होगी. Okay, that is as you saw in Revelation chapter 19 there. और मुकाशवा 19 में Verse 8. 8वीं आयत में और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया क्योंकि महीन कतानी कपड़े मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम मुराद. Yeah, this must not be the Christ because we already believe the Christ and it's given at this time. और ये जो अब वो लिबास इन्हें मिल रहा है ये मसीह नहीं है बल्कि ये उस मौका पर उनको बिलखुसूस पहनने के लिए उनको इख्तियार दिया गया है. Okay, see what I'm saying?
Understand? ये बात Okay, समझ if you see chapter 7, I missed to explain this one. Chapter 7, those people, मुकाशवा 7 में देखें who are these people? And John is asking to the one of the 12 elders. और वो यूहन्ना एक एल्डर से ये पूछता है, बुजुर्ग से, कि ये लोग कौन है जो बड़ी भीड़ है। And verse 14, he answers, 14वीं आयत में है, मैंने उससे कहा कि आए मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। okay, and then many people believe that these are all raptured people, they say. लोग सोचते हैं कि ये लोग वो हैं जो उठाए गए हैं। It cannot be. ये ऐसा नहीं हो सकता, Because when you see the Greek language over here, लेकिन जब हम यूनानी में इसको पढ़ते हैं, coming out of the great tribulation, it says. लिखा है कि वो बड़ी मुसीबत से निकल कर आ रहे हैं। Coming means आ रहे हैं यहाँ. यहाँ इसका मतलब है ये लगातार अमल जारी है। Okay, what it means is that एक लोग, one person coming and another person coming at a later time, another person coming like that. तो ये है एक के बाद एक आया, उसके बाद और आ रहे हैं, उसके बाद और आ रहे हैं। Okay, but so in rapture time, everybody comes up together, right? लेकिन जो उठाए जाने का वक्त होगा उस वक्त तो सब मिलकर एक ही वक्त में उठाए So जाएंगे। this cannot be. This is not my interpretation. This is from the expert of the language in Greek language. ये तशरीह मैं नहीं कर रहा, बल्कि जिन्होंने ये जो जुबानदानी के माहिर हैं, Yeah, वो ये उनकी तशरीह है। yeah. Then what is this great tribulation? तो फिर बड़ी मुसीबत क्या है? Jesus मुझे ने बोला इसके बारे में, okay? And then yeah, if you in the world will be persecuted, Jesus said. खुदावंद यीशु ने कहा तुम ज़मीन पर मुसीबत उठाओगे। Yeah. So these are not raptured persons. तो ये लोग वो नहीं है जो उठाए गए हैं, बल्कि मुसीबत बड़ी they went in the मुसीबत in the great tribulation. No, it's not great tribulation. The great tribulation meaning, if you see the commentaries, they all agree that this is what Jesus said about tribulation. If you are Christians, then you will get some tribulation on this earth. That's what Jesus said. तो जो मत्ती में खुदावंद यीशु ने कहा है कि हम मुसीबत उठाएंगे, वो मुसीबत बड़ी मुसीबत नहीं है, वो बल्कि ज़मीन पर हमें कई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। Yeah. Okay. Now, if you go to Revelation chapter 3, मुकाशवा 3 देखें। here here in let's say in Laodicea church. यहाँ लौदीकिया की एक कलीसिया है। For example, in verse 17. 17वीं आयत में, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। Jesus says they are naked. खुदावंद ने कहा है तो तुम तो नंगे हो। These were Christians. ये मसीहों को कहा जा रहा है। Okay, all wear clothes of this priest clothes of Christ. They wear Christ. और जिन्होंने वो काहन के लिबास पहना हुआ है, उन्होंने मसीह को पहना हुआ है। But how can they be naked? तो फिर ये कैसे नंगे हैं? What it means is that they don't have this, saints' righteous actions that kapre. तो इसका मतलब ये है कि इनके पास जो मुकद्दसीन के काम है, रास्ती के काम, वो नहीं है। So we need to wear two clothes. हमें दो लिबास पहनने हैं। One clothes before God. एक लिबास है जो खुदा के सामने हमने पहन के Before जाना है। God, we have to wear Christ. खुदा के ज़ूर जब हम जाएंगे तो हमें मसीह को पहनना है, But before Jesus, लेकिन जब हम मसीह के सामने we जाएंगे have to wear this fine linen. तो हमें वो बारीक कतानी कपड़े का लिबास पहनना है। If you don't wear this one, if you don't obey, then you are naked. तो अगर हम नाफरमान हैं तो हम नंगे हैं। How do you know? हम कैसे जानते हैं? In Revelation chapter 3 again here. मुकाशवा 3 में, Okay, verse 4. 4 आयत में, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। Yeah, here they are wearing some kind of white clothes. Some of them. और यहाँ लोग हैं जो कुछ हैं, सारे नहीं, थोड़ों ने ये सफ़ेद लिबास पहना है। Okay, to those persons, they are overcomers. ये वो हैं जो गालिब आए। In verse 5. 5वीं आयत में, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा
बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। And then Jesus promised they will wear white clothes in the future. और यहाँ खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में उन्हें एक सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी। When if you wear white clothes on this earth, you will be given a white clothes in the future. तो अगर हम ज़मीन पर वो सफ़ेद एक लिबास पहने हुए हैं तो मुस्तकबिल में भी हमें एक सफ़ेद लिबास दिया जाएगा। When? कब? At the judgment seat of Christ here. मसीह के तख्ते अदालत के सामने। Okay? Okay? Now, and this is strange because Jesus says your names will not be erased or smitten from the book of life. और बड़ा अजीब बात है ये है कि वो खुदावंद कहते हैं मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। All the Christians' names are in the book of life, of course. हर मसीह का नाम किताबे हयात में लिखा How है। can it be removed? How can it be removed? तो फिर वो कैसे मिटाया जा सकता है? What does your Bible say here? बाइबल it can be like a rubber. Oh, yeah, that's a good translation. It will rub off. Okay, yeah. It's the meaning is when you write something, you plaster with some white things like this. तो यहाँ जब मिटाने का लफ्ज़ है ना काटूंगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ लिखा हुआ है नाम लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी सफ़ेदी फेर दी। Yeah, it's not totally removed. वो मुस्तकिल तौर से निकाला नहीं गया बल्कि हल्की सी सफ़ेदी मारी So गई। what it means is that during the millennial kingdom, this person who did not obey the Lord will not rule with the Christ. तो इसका मतलब ये है कि जिसने मसीह की मुकम्मल ताबेदारी नहीं की 1000 साल बादशाहत में वो मसीह के साथ बादशाही नहीं करेंगे। But because he is a Christian, लेकिन क्योंकि वो मसीही है and then which means that he has the grace, he received the grace, कि उस पर फजल हुआ है unconditionally without whether he obeyed or not. और ये फजल जो है गैर मशरूत है कि वो ताबेदारी करेगा या नहीं करेगा लेकिन फजल उस पर हुआ है। Yeah, his name will be restored. उसका नाम जो है And वो बहाल होगा। he will enter into the new heaven and new earth. फिर वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होगा। So when we say 1 Corinthians chapter 5, when this person committed, the sin that even Gentiles doesn't commit. तो फिर जो 5 पाप पहला कुरिन्थियों में वो शख्स जो ऐसा गुनाह करता है जो गैर कौमें भी नहीं करती। And it's written that he will be saved. और लिखा है वो निजात पाए। What does it mean? He will not rule with the Christ in millennial kingdoms. इसका मतलब है कि 1000 साल बादशाहत में मसीह के साथ बादशाही नहीं करेगा। But after millennial kingdom, he will enter into this new heaven and new earth. That's what it means. लेकिन 1000 साल बादशाहत के बाद वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होगा। Understand? Okay, and if you go to Revelation chapter 3, verse 5. 3 बाब की 5 आयत। Yeah, verse 5 here. उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। Okay, now here it is strange. In your language, in your translation, there is nothing appearing here. But if you go to the original Greek language here, तो हमारी उर्दू ज़बान में शायद वो वैसे तर्जमा नहीं है लेकिन जब असल ज़बान यूनानी में जाए Jesus is talking about only one overcomer. तो यहाँ जो एक गालिब आने वाले की बात कर रहा है। But here he says, for one overcomer, he will wear multiple clothes, white clothes. तो वो कई मुख्तलफ जो है सफ़ेद लिबास पहनेगा। Do you have multiple here? White No, clothes? No. But original Greek has multiple clothes here. लेकिन जो यहाँ जो लिखा ना सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी यहाँ पे तस्वर है एक का लेकिन जो असल ज़बान है वहाँ पर जमा में है यानी कई सफ़ेद पोशाकें पहनाई जाएंगी। Yeah, overcomers wear 2 clothes actually. और जो गालिब आने वाले हैं उन्होंने 2 पोशाक पहनी है। One is Christ. एक मसीही है। The other one is fine linen. और दूसरा जो सफ़ेद कतानी कपड़े की पोशाक है जो काम है। Understand? Okay, what is the difference between between here and there? It will be how many years apart here? We talked about. और हमने ये कितने सालों का फ़र्क देखा है जब कलीसिया उठाई गई और अब बड़ा सफ़ेद तख्त के सामने है। There are 2 judgments. और 2 अदालतें हैं। How far? How many years apart? कितना अरसे का वक्फा है?
मोर देन 1000 Yeah, more than 1,003.5, something like that. 1000 3.5 साल. Yeah. Okay. Johan, when you go up and then you stand before Jesus, कौन है? वहाँ कौन है? और जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे और मसीह के सामने खड़े होंगे, वहाँ पर कौन होगा जिसके सामने खड़े होंगे? Okay, 예수 मसीह. यीशु मसीह है. And then who? और कौन होगा? Abraham, of course, all the saints who are raptured, okay? अब्राहम हमारे साथ होगा. Saints who are raptured. किन के आगे खड़े होगा? खुदा. Okay, कैसे जानते हैं? हाँ, कैसे जानते हैं खुदा बाप? How do you know that खुदा will be there? यीशु मसीह उसके दाहिनी तरफ बैठा है। नहीं, ये इसी आयत में जो हमने पढ़ी है ना, उसमें फरिश्ते होंगे। Give me the verse. Give me the verse. गैसिंग नहीं करनी, आयत पर बेस करना है. कोई यही आयत जो अभी पढ़ी इसे देखिए. We just read Revelation chapter 3 verse 5. 3 बाब 5 आयत मुकाशफा. Yeah, यहाँ कौन है जी? Okay. How about in the Gospels? और अंजीलों में भी इनका जिक्र है. Did Jesus say about this? खुदावंद यीशु ने इसका जिक्र किया ना. He will confess before the angels and the Father. Yeah. Luke 12. लूका 12 बाब में. Where is it? Verse 8. लूका 12 बाब 8 आयत. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा. Yeah. So angels are there. यहाँ पर फरिश्तों का जिक्र है. Of course, God is there. And then if you go to Matthew 10, then Jesus say, "My Father, in front of my Father, I confess you." Right? और जहाँ मत्ती 10 पढ़ेंगे तो वहाँ बाप का भी, बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा. But in here, in the white throne judgment, who is there? और बड़े सफेद तख्त के सामने कौन है जी? लॉर्ड जीसस. Yeah, if you go there, for example, Revelation chapter 20, मुकाशफा 20 देखें. verse 11 through 11-12. फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली. फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं. फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया. Okay. Who are there? ये कौन है जी? Are there Christians here? ये सब मसीही हैं? No. Because all the Christians judged there, in the judgment seat of Christ. क्योंकि सब मसीह जो हैं उनकी अदालत मसीह के तख्ते अदालत के सामने 1000 3.5 साल पहले. Okay, here no Christians here. यहाँ पर मसीही नहीं है. Okay, and then these people are mostly non-Christians. ये लोग अक्सर गैर मसीही हैं. But also there are some people who are, having their names in the book of life. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाम किताबे याद में होंगे. Who are they? ये लोग कौन हैं? Why book of life is there? Because although there are non-Christians, अगर ये सब गैर मसीह हैं तो फिर किताबें याद रखने का क्या मकसद है? वो जिन्होंने आखिरी 3.5 साल के अंदर यीशु के लिए जान दी. Those who died during the tribulation. Well, during the tribulation, those who died, actually, if you go to Revelation chapter 20, verse 4, और मुकाशफा 20 की 4 आयत में हम देखते हैं वो जो बड़ी मुसीबत में मर जाएंगे. फिर मैंने तख्ते अदालत और लोग और बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी पूरों को भी देखा, रूहों को भी देखा. बेटा फिर से शुरू से बड़ी तसल्ली से. खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे. okay, there are 3 groups of people here. ये इस आयत में 3 किस्म के लोग हैं. The first group are sitting on the thrones. पहला ग्रुप जो है वो मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ Who गए. are they? जो तख्त पर बैठे हैं कौन है जी? This is chapter 20,
ये 20 बाब, which means in chapter 19, Jesus वापस आया जमीन पर. तो इसका मतलब है कि 19वें बाब में खुदावंद यीशु वापस आ चुका Okay, है। so this is after the last 3.5 years of yes. persecution. ये जो बड़ी मुसीबत है उसके 3.5 साल के बाद ये वाक़या है। Okay, so who are these sitting on the thrones? ये जो तख्त पर बैठे हैं ये कौन है जी? ये जो मसीह के साथ आसमान से हैं, Yeah, those people raptured and coming back to वो जो the आसमान जमीन पर पर. उठाए गए थे और फिर मसीह के साथ वापस आए हैं। Okay, and the second group, they are एक- souls here. और फिर एक और ग्रुप है लिखा है उनकी रूहों को भी देखो। Yeah, they are beheaded, right? ये वो हैं जो बड़ी मुसीबत में जिनके सर कलम किए They गए। don't have the body, so it's described as souls here. अब उन्हें बदन नहीं मिले अभी, लेकिन वो रूहों की हालत में है। Who are these? ये कौन है जी? 3.5 साल के Yeah, 3.5 साल में यहाँ, you know, during the persecution era, they were captured by the Antichrist system and then they were executed. तो 3.5 साल के अरसे में मुखालिफ मसीह ने उनके सर कलम कर दिए थे और ये वो लोग हैं। They were not raptured. They were not ripe at the time. ये तो जो वहाँ कत्ल हुए हैं ये उठाए नहीं गए। After rapture, they awakened. और आफ्टर द After rapture, because they were not raptured, after rapture, they awakened and then, you know, start to जब follow कलीसिया Jesus. उठाई गई थी तो ये वो मसीह हैं जो फिर सरगर्म हुए Yeah, and captured and और फिर executed. Right? पकड़े गए हैं और फिर इनके सर कलम And हुए। third group, और तीसरा ग्रुप क्या है जी? those people who did not receive any mark of beast until Jesus comes. और ये फिर ये है कि वो लोग भी हैं जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की ना उसके बुत की और उनकी छाप अपने माथे पर ली, हाथों और माथे और हाथों पर ली थी। Okay, and then they live, it says, they live. और फिर लिखा है वो जिंदा होगा। What it means is that those second and third group will get resurrected body. तो ये वो लोग हैं जो कत्ल नहीं हुए थे और उन्होंने किसी तरह अपनी जानें बचा ली और फिर खुदावंद यीशु दोबारा आया है। So तो they will- ये वो लोग हैं जिनको फिर नए बदन दिए गए, वो जो रूहें थी और ये लोग और अब मसीह के साथ बादशाही करते हैं। So they will rule with the Christ for 1,000 years. वो 1000 साल बादशाह में मसीह के साथ So बादशाही करेंगे। basically, all the Christians are dealt with in this moment, तो इस वक्त सब ऑल क्रिश्चियंस आर, all dealt with. तो सारे क्रिश्चियन जितने थे मसीह ईमानदार थे उनके साथ खुदावंद यीशु ने जो कुछ करना था वो कर लिया Before entering into millennial kingdom. इससे पहले कि वो 1000 साल बादशाह में दाखिल हों। Okay, and so after 1,000 years millennial kingdom, why book of life is there? तो फिर 1000 साल बादशाह के बाद फिर किताबें याद की क्या जरूरत है? You know, in chapter 20, verse 12, 20 बाब की 12 आयत में फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। okay, when Jesus comes back onto the earth, then it is the end of the grace age. तो जब खुदावंद यीशु वापस आएगा जब जलाल के साथ ईमानदारों के साथ, तो जो फजल का ज़माना है वो ख़त्म हो जाएगा। Yeah, you know, when you see Jesus on by faith at the time, you know, if you try to believe him, you cannot believe and become son of God. तो जब आपने अब यीशु को ज़ाहिरी तौर से देख लिया तो अब आपने क्या ईमान लाना है? How do you know? कैसे पता हमें इसका? Because Jesus summons all the nations. जी Jesus. लगाया जो पीछे बंद हो जाना। Oh, low battery. Why is it low battery? Oh, the switch over there. ओके, this is little bit loose. Oh, Okay. okay. Oh, you know, when Jesus comes back, he summons all the nations. जब खुदा वापस आएगा तो सारी कौमें उसके सामने पेश होंगी। They see Jesus face by face. वो यीशु को रूबरू देखेंगे। If they are non-Christians, right? Non-Christians. वो तो सब गैर मसीही हैं। They would believe Jesus at the time. उस वक्त वो यीशु पर ईमान लाएंगे, It's not possible. लेकिन अब वो उन पर फजल नहीं होगा। They cannot become sons of God. वो खुदा के फरजंद नहीं होंगे। So they cannot be resurrected, वो ना उठाए जाएंगे you know, getting your spiritual body. कि वो रूहानी बदन पाएं। So they enter into the millennial kingdom with this body to be ruled by us. और वो यही इंसानी बदन जो है, जिस्मानी बदन, इसके साथ 1000 साली बादशाहत में शामिल होंगे जिस पर कलीसिया के लोग हुक्मरानी So करेंगे। these people are not children of God.
ये लोग खुदा के फर्जंद नहीं हैं, but they are called the people of God, लेकिन वो कहते हैं खुदा के लोग कहलाते हैं। to be ruled by us, children of God. तो जो खुदा के फर्जंद हैं वो खुदा के लोगों पर बादशाही करेंगे। And among those, there are some people who are serving the Lord well. और उनमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुदावंद की अच्छी खिदमत की। Some people rebel against Christ when this, at the end, Satan is loosed. जब शैतान आज़ाद किया जाएगा तो उनमें से कुछ जो हैं वो मसीह की खिलाफ बगावत करेंगे। Okay, those people who serve the Lord during the millennial kingdom, their names are in the book of life. जिन्होंने हजार साल बादशाहत में मसीह की अच्छी खिदमत की, उनके नाम किताब-ए-हयात में हैं। Okay, those people who served well during the millennial kingdom, they will enter new heaven and new earth. और जिन्होंने हजार साल बादशाहत में मसीह पर भरोसा किया और खिदमत की, वो नए आसमान और नई ज़मीन में दाखिल होंगे। We don't have much time to discuss those things. I talked about these things last time when there was a conference there. हाँ जी, लेकिन हम ज़्यादा तफसील में अभी नहीं जा सकते। But anyway, what I'm emphasizing is that there are two judgments totally different together, each लेकिन other. जो मैं जोर देना चाहता हूँ कि दो अदालतें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। So when you see some reference there, if the God and Jesus appears together at the judgment, लेकिन जब हम ये हवाला देखते हैं जहाँ खुदा बाप और खुदावंद यीशु मिलकर अदालत में हैं, it must be judgment seat of Christ. तो वो मसीह का तख्ते अदालत है। If there is one person, only one person sitting on the throne, लेकिन अगर एक शख्स तख्ते अदालत पे then है it will be white throne judgment. तो वो बड़ा सफेद तख्त है। Understand that? So there are differences between the two judgments here. तो इन दो अदालतों में फर्क है। Okay, the timing is different. इनके वक्त फर्क हैं, About 1,003.5 years difference. 1003 साल। Target is different. इनके जो जिनकी अदालत करनी है वो फर्क लोग हैं। During the judgment seat of Christ, only Christians are there. और मसीह के तख्ते अदालत के सामने सिर्फ मसीही हैं। During the white throne judgment, there are mostly non-believers. और बड़े सफेद तख्त के सामने अक्सर जो हैं also- वो गैर मसीही हैं। Also includes all the people in the millennial kingdom. लेकिन उनमें वो भी शामिल है जो हजार साल बादशाहत में ईमान लाए। At the judgment seat of Christ, the works of the saint matters. मसीह के तख्ते अदालत के सामने जो ईमानदारों के काम है उसकी अदालत है। Not faith. Never it says at the judgment seat of Christ. Never it says about the faith. Okay. और मसीह के तख्ते अदालत में कभी भी ईमान की अदालत नहीं है। And then in the judgment seat, white throne judgment, whether their names are in the book of life. और बड़े सफेद तख्त के सामने देखा जाएगा कि उनका नाम किताब-ए-हयात में है। And if not, according to their works. तो अगर नहीं है तो फिर जो किताबें खोली जाएंगी और उनके कामों के मुताबिक उनका Okay. इंसाफ होगा। At the judgment seat of Christ, what is the consequence? और मसीह के तख्ते अदालत का नतीजा क्या होगा? You get rewarded or you get some harm. हमें या तो कोई अजर मिलेगा या कोई हम नुकसान उठाएंगे। Okay, in the great white throne judgment, लेकिन जो बड़े सफेद तख्त के सामने you will go to lake of fire, या तो हमें आग की झील में डाला जाएगा or you will enter new heaven and new earth. या फिर हम नए आसमान और नई जमीन में जाएंगे। Okay, and the judgment seat of Christ, और मसीह के तख्ते अदालत के सामने it's not related to salvation उसका ताल्लुक नजात के साथ नहीं है। because you are already saved. ये नजात याफ्ता लोग पहले ही हैं। At the great white throne judgment, लेकिन बड़े सफेद तख्त के सामने it's a matter of salvation. यहाँ नजात का सवाल होगा। This salvation is not becoming children of God. ये नजात इसलिए नहीं होगी कि हम अब खुदा के फर्जंद हो जाएं, This salvation is entering into the new heaven and new earth. क्योंकि जो नजात है वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होने के लिए। If you read Revelation chapter 21, 22, there are two group of people actually. और मुकाशफा 20 और 21 में दो किस्म के लोग हैं। God will become their fathers as we sons of God. और एक जगह लिखा है कि मैं उनका बाप हूँगा और वो मेरे बच्चे होंगे। But there are people of God also. और फिर वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कहा है वो मेरी उम्मत होंगे। We will be living inside of the New Jerusalem. हम यरूशलेम में रहेंगे। But kings will be, living outside of this Jerusalem city. The nations. हाँ जी, जो मसीही लोग हैं वो नए यरूशलेम में जो आसमान पर होगा उसमें रहेंगे, लेकिन जो दूसरी कौमें वो बाहर है। And then they will try to enter into this New Jerusalem. और वो उनकी ख्वाहिश होगी कि वो नए यरूशलेम में दाखिल हो। Okay, now at the judgment seat of Christ,
मसीह के तख्ते अदालत के सामने There are God and angels and Yeshua here. वहाँ पर खुदा बाप है, फरिश्ते हैं, खुदावंद यीशु है, It happens in the heavenly temple. और ये आसमानी जो हैकल है उसमें होगा। At the white throne judgment, लेकिन जो बड़े सफ़ेद तख्त है it's only in the white throne judgment, white throne there. वो बड़ा सफ़ेद तख्त के सामने जो है अदालत होगी। At the judgment seat of Christ, मसीह के तख्ते अदालत के the सामने Lord confesses us or not. खुदावंद यीशु हमारा इकरार करेगा या नहीं करेगा। At the white throne judgment, लेकिन बड़े सफ़ेद तख्त के सामने there is no confession process. वहाँ कोई किसी का इकरार नहीं करेगा। Okay, that's the difference. ये बड़ा फ़र्क है Okay, so इन दोनों अदालतों में। according to this view, you will read some of the Bible verses. और इसी ख्याल के तहत हम कुछ आयात पढ़ेंगे। For example, in Matthew 22. मत्ती 22 देखें, मत्ती 22 बाब। Let's say, you know this story, let's say, verse 2. Verse 2. 2 आयत। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की। Okay. Who is this king? ये बादशाह कौन है जी? Who is this king? गॉड द फादर। God the Father. How do you know? कैसे जानते हैं जी? Yeah, but who is this better? बेटा कौन है जी? Yes, Moshe. So दोनों यहाँ. यहाँ पर दोनों मौजूद So हैं, is बाप it- और बेटा दोनों मौजूद हैं। Is it judgment seat of Christ or is it great white throne judgment? क्या ये जो अदालत है ये मसीह के तख्त अदालत की अदालत है या बड़े सफ़ेद तख्त की अदालत है? Moshe. Okay. So here there is a person who didn't wear this wedding garment here, right? तो यहाँ एक शख्स है जो शादी के लिबास में नहीं आया। Verse 11. 11वीं आयत में जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था। Yeah. Is this person a Christian or not? क्या ख्याल है ये शख्स मसीही है कि नहीं? मसीही है। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो शादी में है। Yeah, शादी में है। Yeah. And you know why he didn't wear this garment? तो Yeah, this garment is अब not समझ आती है। Jesus. Okay, the white, stole. It's not about stole. Long garment there. यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि ये वो बड़ा जामा है। It's about the garment that we talked about in Revelation chapter 19, verse 8. और मुकाशवा 19:8 में जो लिबास पड़ा है ये वो लिबास का यहाँ जिक्र है। Understand that? So when I was young, I was taught that this person is not a Christian. तो मैं जब जवान था तो मैं ये सोचता ये शख्स शायद मसीह नहीं है। Then the person who says that believes that in the Uttaya Jata समय non-Christians भी Uttaya जाएगा. See what I'm saying? Yeah, it's not possible. It's not true. ये मुमकिन नहीं है कि गैर मसीह भी आसमान पर उठाए जाएंगे। Yeah. So what happens to this person? इस शख्स के साथ क्या हुआ जी? Verse 13. 13वीं आयत में और उसने उससे कहा, इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दाम पीसना होगा। Yeah. So at the judgment seat of Christ, he will be cast outside. तो मसीह के तख्ते अदालत के सामने वो बाहर अंधेरे में डाला जाएगा। What it means is that during the millennial kingdom, इसका मतलब ये है कि 1000 साला बादशाहत में he will not rule with the Christ. वो मसीह के साथ बादशाही नहीं करेगा। Think about this. When Jesus comes, he will sitting in the Jerusalem. और आप ये जरा तसव्वुर करें कि खुदावंद आएगा और वो यरूशलेम पर तख्त नशीन होगा। He will appoint us to deal with some of the गांव or city or village, तो वो कई यूनियन काउंसिलें देगा हमें। This person who didn't obey Jesus on this earth, और वो जो मसीह की ताबेदारी नहीं करता, how can he know how to treat matters? तो उसे कैसे पता होगा कि ये मामलात को कैसे सुलझाना है? Do you think when Jesus comes, our knowledge abruptly change, our thoughts abruptly change? No, it doesn't. तो क्या ख्याल है जब हम यीशु आएगा तो क्या हमारा इल्म बहुत बढ़ जाएगा? Yeah, नहीं, ऐसा नहीं। although we know straightforwardly, as 1 Corinthians chapter 13 says. और जैसे पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 13 और 3 13. 13 13 में कहा गया है। Yeah, and then
And then, but you know, your thoughts, your mind, you know, is based upon what you learn on this earth when you obey Jesus. जब आप मसीह के सामने होंगे और जो आपकी सूझबूझ होगी वो बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे जो कुछ आपने ज़मीन पर सीखा है. So when you read this description, somebody who is cast outside bahar mein, weeping and gnashing his teeth, he is a Christian. तो जब आप ये पढ़ते हैं कि कोई बाहर अंधेरे में डाला गया और वो रोता है और दांत पीसता है, ये मसीही है. Yeah, let's go to Matthew 18. मत्ती 18. मत्ती 18. Let's say, you know this story also, you know. Let's say verse 23. 23वीं आयत में बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा. Okay, you know, in chapter 22 and also in chapter 18 here, बाब 22 और बाब 18 में Jesus is talking about kingdom of heaven. यहाँ खुदावंद आसमान की बादशाह का He जिक्र says करते हैं kingdom is like this. और वो कहते हैं आसमान की बादशाही ऐसे है. Where is kingdom of heaven? और आसमान की बादशाही कहाँ है जी? Where is kingdom of heaven? आसमान की बादशाही कहाँ है? I'm asking you, where is kingdom of heaven? कहाँ है जी आसमान की बादशाही? Where is Jesus, there is his kingdom. Okay, yeah. You know, if you go to, for example, Matthew 13, देखे 13 Jesus is giving us many parables there about the kingdom of heaven. आसमान की बादशाही के बारे में बहुत सी तमसीलें दी गई हैं. Okay, and then you know, for example, let's say, where is kingdom of heaven here? Yeah. Sorry. Okay, here, let's say, verse 13, 24, chapter Matthew 13, verse 24. 13 बाब 24 आयत. उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया. So, you know, in most of the times in chapter 13, when Jesus gives parables, many parables here, तो 13 बाब में मसीह ने जब बहुत सी तमसीलें पेश की हैं आसमान की बादशाही की, he's talking about kingdom of heaven. वो बात तो आसमान की बादशाही की कर रहा है. But this kingdom of heaven is right now on this, when you propagate, you know, when you share the gospel, it's expanding there. तो ज़मीन की जो आसमान की बादशाही है वो वहाँ ज़मीन पर है जहाँ खुशखबरी सुनाई जा रही है. Do you agree? You know, Jesus says the kingdom of heaven is like, you know, seeding here and there, right? तो अगर आसमान की बादशाही बीज बोने वाले की तरह है, Yeah, right now it's expanding there. So kingdom of heaven starts from here. तो ज़मीन आसमान की बादशाही ज़मीन से शुरू होती है. Okay, but you know, many times when Bible in Matthew 18, Matthew 22, when Jesus is talking about kingdom of heaven there, और जब मत्ती 18 और 22 में खुदावंद आसमान की बादशाही का जिक्र करता है, when the servant and with the Lord having some kind of account settled, और जब नौकर और खुदावंद के दरमियान हिसाब किताब हो रहा है, हिसाब किताब, you know, when this word हिसाब kitab, okay, when this word हिसाब किताब happens, it happens at the judgment seat of the Christ. तो जो हिसाब किताब है वो मसीह के तख्ते अदालत के सामने है. Do you agree? ये समझ आती है Yeah, बात? when do you हिसाब किताब with Christ? तो मसीह कब करेगा हिसाब किताब? Yeah, after we are raptured, judgment उठाए seat of जाने के Christ, बाद at the time. उस वक्त होगा जब हम उठाए जाएंगे. So what Jesus is saying about this kingdom of heaven, he is talking about millennial kingdom. तो जब आसमान की बादशाहत की बात करता है खुदावंद, तो ये 1000 साला बादशाहत भी है. You know, here is the person who is pardoned of his 10 talents. वो शख्स जो था जिसके pardon? Yeah, he was you know, he was Yeah. you know, Yeah. Jesus pardoned him, you know. Yeah, 10,000 talents. हाँ, Yeah. अच्छा. तो एक शख्स था जिसको
10,000 तोड़े कर्ज आता था और खुदावन ने उसको माफ कर दिया। Is this 10,000 talents before he became a Christian so that he was pardoned and became Christian, or is it after he became a Christian? तो मसीह ने जो उसको 10,000 तोड़े माफ किए, वो क्या मसीह होने के से पहले की माफी है या मसीह होने के बाद की माफी है? Pele. Okay, if you go to, for example, verse 34, 34 आयत देखें। विच चैप्टर? Matthew 18, मत्ती 18 34। 34. और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाला किया Yeah, yeah. जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। ये जब तक. You see what does it mean? जब तक का क्या मतलब है? Until you pay all. जब तक वो सारी अदायगी नहीं कर देता। Is it possible for you to pay back to the Christ about the sins that you committed before you become a Christian? क्या आप यीशु को अपने गुनाहों की अदायगी कर सकते हैं जो आपने मसीह होने से पहले किए थे? नहीं. इसलिए यहोवा का 10,000 talent must be the ones you committed sins after you become a Christian. बल्कि ये वो गुनाह है जो मसीह होने के बाद उसने किए हैं। Then why is it that much, 10,000 talent? तो ये इतनी बड़ी कीमत 10,000 तोड़े। But this guy, he's, kind of, what does he do? To his friends, to his brother, he was, he was trying to, telling him, give me back my 100 denarion, तो इसने आप तो 10,000 का कर्जदार है, लेकिन अपने जो साथी है, भाई है, उसको कह रहा है मेरे जो 100 आते हैं वो मुझे वापस दे। Yeah, what it means is that actually when you do some sins after you become a Christian, इसका मतलब ये है कि मसीह होने के बाद अगर हम कुछ गुनाह करते हैं, although we think it's a small sin in our hearts or some, अगरचे हमारे दिल में तो ये मामूली से गुनाह है, because God is so holy, लेकिन खुदा इतना पाक है, it becomes like 10,000 talents. लेकिन to ये God. 10,000 तोड़े की तरह है खुदा के सामने, But God forgives us. लेकिन खुदा हमें माफ करता है। So if you are forgiven after you become a Christian, और मसीह होने के बाद जब हमें माफी मिली है, if you have a problem with the brothers, लेकिन जब हमें कोई दूसरों के साथ if मसला you है, don't forgive, अगर हम उन्हें माफ नहीं करते, God will not forgive you. खुदा हमें माफ नहीं करेगा। So is this person in verse 34? तो 34वीं आयत में ये शख्स He's put into prison. लिखा है इसे कैद में डाल दो। Is he a Christian or not? क्या वो मसीह नहीं है? है। कैसे जानते हैं? आपने पहले बताया already forgiven. Yeah, he's forgiven, right? उसने खुद तो माफी पाई है। Yeah, Jesus, non-Christians, they don't ask forgiveness. जो गैर मसीही हैं वो तो नहीं माफी मांगते। If he is non-Christian, if this person is अगर non-Christian, ये शख्स गैर मसीही होता it becomes a real problem. तो फिर बड़ा मसला हो जाना। Because is it possible for non-Christian to enter the hell and coming back? क्या किसी गैर मसीह के लिए मुमकिन है कि वो कैद में रहे और फिर अदा करके फिर वापस बाहर आ जाए? No, it's not possible. ये तो नहीं हो सकता। Do you believe so? If non-Christians going into the hell and then do not stay eternally and coming back after paying some? क्या ये मुमकिन है गैर मसीह के लिए कि वो जहन्नम में जाए और फिर वहां से कुछ अदा करके फिर वापस आ जाए? So this person must be a Christian. तो फिर ये शख्स जो है ये तो मसीही है। Understand? So, we have this Lord's Prayer. खुदावंद की दुआ रबानी हम पढ़ते हैं। Okay. And Lord's Prayer, Jesus says, Thy kingdom come. तेरी बादशाही आए। What is this Thy kingdom come? Where is it? बादशाही कहाँ है जी इस वक्त? When I was praying this prayer, Thy kingdom come, what is the next one? और इससे आगे क्या पढ़ते हैं जी? As thine will be done As it in is, the heaven, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर it will पूरी be होती है, done onto the earth. जमीन पर भी पूरी हो। That's the definition of the Thy kingdom. See what I'm saying? Which kingdom? That's the definition of the Thy kingdom. अच्छा, ये उसकी बादशाहत की
यानी शनाख्त है। You know, but usually when I pray this Lord's Prayer many times, right? And then I thought like thy kingdom and thy will be done on earth as done on the heaven. It's separate, अलग to me. तो जब हम ये बात करते हैं कि तेरी बादशाहत आए और जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है तो ज़मीन पर हो, तो ये तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों अलग अलग हैं। No, it's not अलग. ये It's the अलग-अलग नहीं। definition of the thy kingdom there. Sorry? It's the definition of the thy kingdom. You know? और ये उसकी बादशाहत की तशरीह है। Where thy kingdom is on this जमीन पर, उसकी बादशाहत ज़मीन पर भी है, starting from जमीन पर. ज़मीन से शुरू होती है। Because we are staying only, आसमान पर we are staying only 3.5 years. आसमान पर तो 3.5 साल होंगे। Why would pray for this 3.5 years? तो फिर हम इस 3.5 साल के लिए क्या दुआ करते हैं? Yeah, understand that? So if you go over all the kingdom of heaven in Matthew, जब हम सारी आसमान की बादशाहत के बारे में मत्ती में पढ़ते हैं, the kingdom of heaven starts from now on, तो आसमान की बादशाह अब से शुरू होती है and it until the millennial kingdom. और ये जारी रहेगी जब तक 1000 साला बादशाहत भी होगी। It does not include the new heaven and new earth. इसमें नया आसमान नई ज़मीन But शामिल नहीं if है। you read some other gospels, जब हम दूसरी अंजीलों को पढ़ते हैं, it has not kingdom of heaven but kingdom of God there. वहाँ आसमान की बादशाहत नहीं है बल्कि खुदा की And बादशाहत। kingdom of God starts from now on, खुदा की बादशाहत भी अब से शुरू होती है and then it can be millennial kingdom. और वो 1000 साला बादशाहत भी हो सकती It है can be new heaven and new और वो earth, नया आसमान और नई ज़मीन भी हो सकती including everything. है। वो उसमें सब कुछ शामिल होगा। Okay, so there is a difference, a little bit of difference there. और तो इन दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है। But anyway, so if you go to Matthew 5, for example, जब मत्ती 5 देखें, let's say Jesus says here, for example, where is it? Verse 25, 26. 25-26, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुंसिफ के हवाला कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। is it 25-26 or 30? Yeah, 26. मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी को की अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। What does it talk about? यहाँ अब क्या बात हो रही है? It's the same thing as Matthew 18. और यहाँ भी ये मत्ती 18 की तरह है कि जब वो अदा करेगा फिर आज़ाद होगा। Do you see it? Until you pay it all. और यहाँ लिखा है जब तक कोड़ी अदा ना करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। Is this person Christian or not? क्या ये शख्स मसीही है या नहीं? Masihi है. Otherwise, if this is non-Christian, he cannot pay back and coming out. क्योंकि ये अगर ये गैर मसीही होता तो ये वो कोड़ी अदा करके फिर बाहर नहीं आ सकता। Okay, and then for example, Matthew 5 verse 1 there. मत्ती 5:1 वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। Yeah, who came forward to Jesus? यहाँ खुदावंद यीशु के पास कौन आए हैं जी? Disciples. And Jesus was talking to disciples. और यहाँ लिखा है जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। खुदावंद शागिर्दों से बात कर रहा है। Yeah. So be careful to read verses while you have already having some kind of theology or whatever. तो हम बहुत खबरदार रहें क्योंकि जब हम कई आयात पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से एक तालीम होती है। Okay, if you go to Revelation, मिसाल के तौर पर मुकाशवा में जाए, chapter 2, 2 बाब, मुकाशवा 2 बाब, verse 11. 11वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। Okay, he's talking to the church यहाँ वो कलीसिया से मुखातब है and to the overcomer. और जो गालिब आने वाले हैं उनसे मुखातब है। What is the promise here? और वादा क्या है? He will not get harm of the second death. वो दूसरी मौत से नुकसान नहीं उठाएगा। What does it mean? इसका क्या मतलब है? It means if you are not an overcomer, इसका मतलब ये है कि अगर हम गालिब आने वाले नहीं हैं then you will get second death, the harm of the second death. तो आप दूसरी मौत का नुकसान उठाएंगे। What is the harm here? Second death is what? Second death is putting into the hell,
तो दूसरी मौत तो जहन्नम को पेश करती है। Yeah. That's what Jesus said. ये खुदावंद यीशु ने कहा है। So if you go to, for example, second death and second harm of the second death are different. जो दूसरी मौत है और दूसरी मौत का नुकसान है, इनमें एक फर्क है। All the non-believers will be going through the second death, right? हर एक गैर ईमानदार जो है वो दूसरी मौत का में जाएगा They put into hell and eternally living there. और वो जहन्नम में डाले जाएंगे और हमेशा हमेशा तक But वहाँ रहेंगे। some Christians harmed, लेकिन जो नुकसान उठाएंगे they will get the harm of the second death. वो दूसरी मौत का नुकसान उठाएंगे। They will put into this prison, वो कैद में डाले जाएंगे and then until they pay back all those disobedience, जब तक वो सारी नाफरमानी की अदायगी वापस नहीं करते, and then they will come out, और फिर वो बाहर आएंगे and then they will join new heaven and new earth, और वो नए आसमान नई जमीन का हिस्सा होंगे, because they believe Jesus. क्योंकि वो खुदावंद पर ईमान रखते हैं। That's what the Bible says. ये बाइबल कहती है। Okay, you might. भाई यहाँ पर एक सवाल है कि वो क्या अदा करेंगे बाप का? So what will they pay? What will they pay? What will they pay? Yeah. Well, probably they will be gnashing and teasing, and what they probably will repent over there. तो लगता है कि रोना दांतों का पीसना जो है एक तौबा को पेश Some करता है। people's disobedience is very small, कईयों की जो नाफरमानी है वो छोटी है, so they will remain in the prison a little time. शायद वो थोड़ी देर उस कैद खाना में Some रहें। people's disobedience, बड़ा है, ज़्यादा बड़ा, क्योंकि बड़ी नाफरमानी है, and then he will stay there a little bit longer. शायद वो थोड़ा और ज्यादा रहे। Yeah, this is I don't know whether this is okay. If you go to Mark 9, for example, मुझे सही समझ नहीं है इसकी, लेकिन मरकस 9 देखें। this is verse 47. मरकस 9। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नम में डाला जाए। Yeah, to whom Jesus is talking to? खुदावंद किससे मुखातब हैं? कैसे जानते हैं? Yeah. खुदा की बादशाही में बचाएगा। He's entering the kingdom. Yeah. He's talking about entering into the kingdom of God there. ये खुदा के बादशाहत में दाखिल होने की बात है। To non-Christians, this kind of term cannot be applied. गैर मसीहियों के लिए ये बातें नहीं इस्तेमाल हो सकती। And then Jesus says, "You will put into the hell." Oh, yeah. And then you have to pay back there. खुदावन यहाँ कह रहे हैं कि वो जहन्नम में डाला जाएगा और उसे वहाँ अदा करना पड़ेगा। And verse 48. और 48 आयत, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। When I became a Christian, my teacher taught me, like this one is describing about the hell which non-Christians go. तो यहाँ जब मैं नया मसीह में आया तो मेरे उस्ताद ने बताया कि ये जो है ये वो जगह है जहाँ मसीह लोग जाएंगे। But will not go. Non-Christian go. The hell that non-Christian go. I was taught that way when I became a Christian. मुझे ये सिखाया गया कि जो गैर मसीह हैं वही जहन्नम में जाएंगे। Of course, non-Christians go to the hell. But when Jesus was talking this one here, right here, by the context, it's given to the Christians here. लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है तो क्रिश्चियंस की बात की जा रही है, जो ये इसका सियाको सबाक है। You see verse 49? 49 आयत, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। Yeah, and verse 50? नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? यहाँ का नमक कौन है? Yeah, Christians. Non-Christians are not namak. मसीही नमक है, गैर मसीही नमक नहीं है। Who lost namak? और नमक की नमकीनी किन्होंने खोई है? Disobeying Christians. नाफरमान मसीहियों ने। So if you go to the prison there, hell there a little bit, और अगर थोड़ा अरसा जहन्नम में है, and then you will be, how do you express this? You will be seasoned with the salt. तो वो फिर तुम्हारी जो नमकीनी है
वो फिर से आ जाएगी। Yeah, because you were originally salty, you lost it, and you will be seasoned with the salt there. तो वो पहले आप नमक थे, नमकीनी जाती रही, लेकिन आप फिर से नमकीन किए जाएंगे। Is it necessary to season with the salt for the non-Christians? क्या मसीहियों को नमकीन किया जाएगा? No, not at all. नहीं। Not at all. It's not necessary. So basically, except in Matthew 23, when Jesus is talking to Pharisees about the hell there, तो फरीसियों से जब मत्ती 23 बाब में खुदावंद जहन्नम की बातचीत करता है, all the hells that Jesus mentioned is for the Christians actually. तो वहाँ जितनी भी जिक्र है जहन्नम का, वो मसीहियों के बारे में। Read carefully Matthew 5, 6, those things. और बड़े गौर से वो पढ़े आप। Yeah, Johann also, Mark 9. I realized this one about maybe about 3 months ago. मुझे इन बातों की सिर्फ 3 महीने पहले समझ आई है। Yeah, it cannot be for the non-Christians. ये गैर मसीहियों के लिए ये वाला जात नहीं है। So we have to wear this white linen तो by हमें वो- obeying the Lord. तो जो एक तो मसीह को पहना है, लेकिन उसके ऊपर वो दूसरा महीन कतानी कपड़े का लिबास भी पहनना है। Okay. जो काम है खत्म करना। खत्म। इसका मतलब है जो हमारे बिलीवर पहले जो कह चुके हैं कि वो एक ही बात पर जोर देते थे कि होगा बरसर लेखा, हाँ जामी होशियार हो गए। हाँ जी, हाँ जी, होशियारी यहाँ पर है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर रात नहीं होगी। In the old times, we used to sing a song that that a believer when he's going to heaven, better be very careful. Oh, okay. We used to sing a song in the old times. Okay. Good. Okay.